امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ نیا قانون نافذ۔ امریکی صدر دوسری بار صدارت کی اننگز کھیلنے کے لیے جارحانہ موڈ میں دکھائی دینے لگے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا 30,000 تارکین وطن کو گوانتانامو بے جیل بھیجنے کا اعلان۔ لاک اینڈ ریلی بل منظور، یہ کیا ہے اور کیوں جاری کیا گیا ہے؟ اس بل کی گرفت میں کون کون آئے گا؟ اہم تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اب تک کتنے غیر قانونی تارکین وطن گرفتار اور ملک بدر کیے جا چکے ہیں؟ کہاں کہاں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ اس ویلاگ میں ان تمام پہلوؤں پر تفصیلات کے ساتھ بات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حدیقہ عروج خان۔ ویورز، امریکی صدر نے لنکن ریلی ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس منصوبے کے مطابق امریکہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کو جبری طور پر بے دخل کیا جا سکے گا۔ ویورز، امریکی صدر نے لنکن ریلی ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس منصوبے کے مطابق امریکہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کو جبری طور پر بے دخل کیا جا سکے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز لنکن ریلی ایکٹ کو باقاعدہ قانون کا درجہ دے دیا ہے، جس کے تحت امیگریشن افسران کو اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے سکیں گے جو پہلے بھی کسی جرم میں گرفتار کیے گئے ہوں۔ یہ صدر ٹرمپ کے دوسرے صدارتی دور کا پہلا قانون ہے جس کا وعدہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران عوام سے کیا تھا۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس قانون سے ملک میں جاری تارکین وطن کی یلغار کو روکنے میں مدد ملے گی۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخی قانون ہے جس پر آج ہم دستخط کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کے دوران کہا کہ یہ بے شمار معصوم امریکیوں کی جانیں بچانے والا قانون ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو گوانتانامو بے میں خصوصی جگہ بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاک اینڈ ریلی ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں، جس سے غیر قانونی امیگرینٹس کو گرفتار کرنا، حراست میں لیا جانا اور جبری بے دخل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں قانونی حیثیت اختیار کرنے والا یہ پہلا قانون ہے۔ بل ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں ہی کے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا، جس پر صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ اس قانون سے سینکڑوں امریکیوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ ہوم لینڈ سیکریٹری کے وزیر کرسٹی نوئم بھی صدر ٹرمپ کے دستخط کیے جانے کے وقت موجود تھیں۔ قانون کے تحت اب وفاقی امیگریشن حکام بغیر قانونی اسٹیٹس کے امریکہ میں مقیم ایسے افراد کو بھی جبری بے دخل کر سکیں گے جن پر معمولی نوعیت کی چوری، دکان سے چیز اٹھانے، اہلکار پر تشدد کرنے یا کسی شہری کو موت کے منہ میں دھکیلنے یا شدید زخمی کرنے میں ملوث ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ بدنام زمانہ گوانتانامو بے ملٹری جیل میں 30,000 غیر قانونی تارکین وطن کو قید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ چونکا دینے والا اعلان اس وقت کیا ہے جب انہوں نے لاک اینڈ ریلی بل پر دستخط کیے، جس کے تحت چوری اور پرتشدد جرائم کے الزام میں دستاویزات نہ رکھنے والے تارکین وطن کو مقدمے سے پہلے حراست میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر رہا ہوں جس میں پینٹاگون اور ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گوانتانامو بے میں 30,000 تارکین وطن کو رکھنے کے لیے انتظامات شروع کریں۔ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور اقتدار کے آغاز پر تارکین وطن کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا وعدہ کیا تھا، جس پر تیزی سے عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گوانتانامو بے سے نکلنے کو ایک مشکل مقام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اعلان کیے گئے اقدامات ہمیں اپنی کمیونٹیز میں تارکین وطن کے جرائم کے مسئلے کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے ایک قدم اور قریب لے آئیں گے۔ ویورز، وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد یہ پہلا بل ہے جس پر ٹرمپ نے دستخط کیے ہیں۔ 20 جنوری کو ٹرمپ کی حلف برداری کے صرف 2 دن بعد ریپبلکن کی زیر قیادت امریکی کانگریس نے اسے منظور کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ جو لوگ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے وہ خود جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ امریکی صدر نے غیر قانونی امیگرینٹس کو گوانتانامو بے جیل بھیجنے کا منصوبہ بھی بنا لیا ہے۔ اس ضمن میں ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو ٹرمپ کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مجرموں کے لیے گوانتانامو بے میں 30,000 بستر موجود ہیں۔ گوانتانامو بے ایک امریکی بحری اڈا اور جیل ہے جو کیوبا کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اسے عام طور پر گوانتانامو بے حراستی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، جہاں 2002 کے بعد سے دہشت گردی کے مشتبہ ملزمان کو قید کیا گیا ہے، جبکہ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ جیل
9/11 के हमलों के बाद दहशतगर्दी के मुश्तबा अफराद को रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ग्वांतानामो बे का ऐलान ही वो चीज़ है जो मीडिया में सुर्खियां बनाएगा। अलकायदा के 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने ये जेल खोली थी जहां कई अफराद को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रखा गया जिन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान, इराक और दीगर ऑपरेशंस के दौरान पकड़े गए थे। आगाज पर क्यूबा के मशरकी किनारे पर वाक़ इस जेल में तकरीबन 800 अफराद को रखा गया था। कैदियों के बयानात में अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से उनके साथ होने वाले तशद्दुद और बदसलूकी का जिक्र किया गया है, जिस पर मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर तवील अरसे से तनकीद की जा रही है। क्यूबा के सदर मिगेल डियाज़-कैनल ने ट्रंप के मंसूबे को जुल्म करार देते हुए कहा कि पनाह गुज़ीनों को ऐसे मराकज़ के करीब रखा जाएगा जो अमेरिका ने तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत के लिए इस्तेमाल किए थे। साबिक डेमोक्रेटिक सदूर जो बाइडेन और बराक ओबामा ने जेल को बंद करने का वादा किया था, लेकिन दोनों अपने दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक इसे बंद ना कर सके। व्यूअर्स, लॉग-इन रैली बिल जॉर्जिया की नर्सिंग की तालिबा के नाम पर रखा गया है, जो 22 साल नर्सिंग की तालिबा थी, जिसे गुज़श्ता साल वेनेज़ुएला के एक शहरी ने 22 फरवरी 2024 को जॉर्जिया के शहर एथेंस में रेस के दौरान कत्ल कर दिया था। ट्रंप ने कत्ल होने वाली 22 साल अमरीकी नर्सिंग की तालिबा लॉग-इन रैली के वालिदैन के लिए व्हाइट हाउस में एक तकरीब की मेज़बानी भी की। अमरीकी सदर ने इस मौके पर कहा कि यह होलनाक जुर्म कभी होने ही नहीं देना चाहिए था और बतौर सदर मैं इस पर हर दिन काम कर रहा हूं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ऐसा कोई और सानहा दोबारा रोनुमा ना हो। हम लॉग-इन की याद को हमेशा जिंदा रखेंगे। इस इक़दाम से उनका नाम भी हमारे मुल्क के कवानीन में हमेशा जिंदा रहेगा और ये एक बहुत अहम कानून है। वेनेज़ुएला के 26 साल जोस एंटोनियो अबारा को 2024 में लॉग-इन रैली के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था, जब वो एथेंस में जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के करीब सुबह के वक्त लापता हो गई। इस कत्ल का मुलजिम वेनेज़ुएला का गैर कानूनी तारकीन वतन था। मुलजिम इससे कबल भी एक दुकान में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका था, ताहम इसे हिरासत में नहीं लिया गया था। लॉग-इन रैली के कत्ल का वाक़या 2024 के इंतखाबात में ट्रंप और रिपब्लिकन जमात के लिए एक बड़ा नारा बन गया, जो गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त इमिग्रेशन कवानीन का मुतालबा कर रहे थे। सदर ट्रंप की जानिब से मुल्क से 10 लाख अफराद के करीब ऐसे तारकीन वतन को निकालने का भी ऐलान किया गया है जिनके पास कानूनी दस्तावेजात ही नहीं है, लेकिन इस मंसूबे के रास्ते में अमेरिका के वो शहर रुकावट बन सकते हैं जिन्हें तारकीन वतन की पनाहगाहें करार दिया जाता है। इनमें लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो और एटलांटा जैसे शहर शामिल हैं, जहां बिना कानूनी दस्तावेजात वाले तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और इन शहरों की मुकामी पॉलिसियां भी मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत नकल मकानी के लिए ज्यादा दोस्त नवाज हैं। ट्रंप इंतजामिया ने शिकागो शहर से बगैर दस्तावेजात वाले तारकीन वतन को हिरासत में लेने और मुल्क बदर करने का आगाज किया और इसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते के आखिर तक इसी किस्म की कार्रवाइयां एटलांटा, डेन्योर, मियामी और सैन एंटोनियो में भी शुरू की गई, लेकिन किसी शहर का अपने आप को पनाहगाह कहने का मतलब क्या है और ये बगैर दस्तावेजात वाले तारकीन वतन को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है? व्यूअर्स, अगर कोई शख्स किसी माकूल दस्तावेजात के बगैर इन पनाहगाह कहे जाने वाले शहर में रह रहा है तो वो अपनी इमिग्रेशन की हैसियत को साबित किए बगैर हुकाम के साथ मामलात में आसानी की तवक्को कर सकता है, लेकिन ये इस बात की ज़मानत नहीं कि वफाकी एजेंट भी इस मामले में अपना काम नहीं कर सकेंगे। अगर किसी बगैर दस्तावेजात वाले शख्स को किसी जुर्म की वजह से हिरासत में लिया जाता है और इमिग्रेशन हुकाम को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का हक हासिल है। वो कारोबारी इदारों या अवामी मुकामात के साथ साथ निजी घरों में भी छापे मार सकते हैं। दौरे हाजिर के अमेरिका में सही मानों में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो कि हकीकतन पनाहगाह हो और जहां ICE जैसी विफाकी एजेंसीज मुल्क बदरी के लिए दाखिल ना हो सके। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि कोई शख्स बगैर कानूनी दस्तावेजात के वहां पहुंचकर सियासी पनाह की दरख्वास्त कर सकता है और इसे मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं कि ये वो चीज़ है जिसके बारे में बहुत से बगैर दस्तावेजात वाले तारकीन वतन जानते हैं कि अगर उनके पास माकूल दस्तावेजात नहीं हैं और उन पर मुल्क बदरी के अहकामात आयद हैं तो वो तमाम पुलिस फोर्सेस पर एतमाद नहीं करते, वो कोई भी जुर्म करने से बचते हैं, वो ड्राइविंग या बाहर जाने की कोशिश नहीं करते कि कहीं पुलिस का सामना ना हो जाए, वो नशे की हालत में गाड़ी चलाने या इस तरह की कोई चीज़ करने से गुरेज करते हैं जो उनके लिए मुल्क बदरी का बाइस बने। बहरहाल,
ट्रंप और दीगर रिपब्लिकन सियासतदानों की जानिब से बगैर दस्तावेजात वाले तारिकीन वतन की पनाहगाह कहे जाने वाले शहरों में डेमोक्रेटिक हुकूमतों की जानिब से मुबैना तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाने को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो इस चीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये तारिकीन वतन अमरीका के स्पोर्ट या सेहत के प्रोग्रामों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अवामी वसाइल को भी इस्तेमाल करते हैं। इमिग्रेशन रियलिटीज़ नामी किताब के शरीक मुसन्निफ कहते हैं कि तारिकीन वतन दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले में कम फलाही प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। वो टैक्स और पेंशन की मद में ज़्यादा अदायगी करते हैं जिनका वो रिटायर होने पर कभी दावा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने या तो गलत सोशल सिक्योरिटी नंबर इस्तेमाल किए होते हैं या फिर वो मुल्क छोड़कर चले गए होते हैं। उन्होंने मजीद ये कहा है कि वो जायद अदा किए गए टैक्सों की वापसी का मुतालबा भी नहीं करते और बहुत से लोग बेनिकाब होने के खौफ से इमदादी प्रोग्राम्स पर अपना हक नहीं जताते। हकीकत यह है कि पनाहगाह कहे जाने वाले शहर इमिग्रेशन एजेंसीज के साथ ताउन नहीं करते हैं, क्योंकि इससे वफाकी हुकूमत से वसाइल के हुसूल के हवाले से तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। व्हाइट हाउस इन रियासतों और मुकामी हुकाम की हिमायत कर सकता है जो इसकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में मदद करते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश या डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर की रिपब्लिकन इंतजामिया ने सेक्शन 287G जैसे ज़ाब्तों का इस्तेमाल किया है ताकि मुकामी हुकाम को इमिग्रेशन की हैसियत का जायज़ा लेने जैसे वफाकी कामों को अंजाम देने के लिए तरग़ीबात फराहम की जा सकें। अपने दूसरे दौर में ट्रंप ने दफ्तर में पहले दिन इमिग्रेशन से मुताल्लिक कई इंतज़ामी अहकामात पर दस्तखत किए, जिसमें एक कानून को मनसूख करना शामिल था जिसमें वफाकी एजेंट्स को गिरजाघरों, स्कूल्स और अस्पतालों में बगैर दस्तावेजात वाले तारिकीन वतन की तलाश के ममानियत थी। ये वो मुकामात हैं जिन्हें पहले हसास समझा जाता था और इन्हें इमिग्रेशन छापों से मुस्तस्ना समझा जाता था। टॉम हुमन बगैर दस्तावेजात वाले तारिकीन वतन के खिलाफ हिकमत अमली बनाने वालों में से एक हैं और उन्हें ट्रंप ने बॉर्डर जार का ओहदा दिया है। उन्होंने कहा है कि बगैर दस्तावेजात वाले अफराद को तलाश करने और पकड़ने की कार्रवाई सबसे पहले शिकागो में होगी। इस शहर और रियासत पर डेमोक्रेट्स की हुकूमत है। मेयर बर्डन जॉनसन और गवर्नर JP पटर्सकन ने कहा है कि वो सेंचुरी सिटी के कवानीन की हिमायत करते हैं जिन्हें वेलकमिंग सिटी ऑर्डिनेंस कहा जाता है, लेकिन इतवार को शिकागो में मुनक़िद एजेंसीज की तरफ से इमिग्रेशन के नफाज की कार्रवाइयाँ की गईं जिनकी निगरानी के लिए शहर के आला हुकाम भी मौजूद थे। मुतादिद ज़राए ने यह बताया है कि उन कार्रवाइयों में इन तारिकीन वतन को निशाना बनाया गया है जिनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी हैं, लेकिन जब से सदर ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं ये तशवीश पाई जाती है कि ये कार्रवाइयाँ सिर्फ इन लोगों की हद तक ही महदूद नहीं रहेंगी जिनके खिलाफ पहले से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, बल्कि इसका इतलाक तमाम ऐसे लोगों पर होगा जिनके पास माकूल दस्तावेजात नहीं, ताकि लाखों लोगों को बेवतन करने का हदफ पूरा किया जा सके। दूसरे शहर जहां हफ्ते के आखिर में वफाकी एजेंट्स के छापे या ऑपरेशन हुए हैं उनमें डैनियल, ह्यूस्टन, सैन एंटोनियो, मियामी और एटलांटा शामिल हैं। माजी में जो कुछ हुआ है अभी तक इससे बहुत मुख्तलिफ पैमाने पर कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में डेमोक्रेटिक इंतजामिया के दौर में भी। नकल मकानी के माहिरीन कहते हैं कि जो बाइडन और बराक ओबामा समेत हर दौर में मुल्क बदरियां हुई हैं जो बड़े पैमाने पर थीं, लेकिन इन रोजमर्रा जलावतनियों की मीडिया कवरेज कम थी। और फिलहाल तादाद वैसी ही है, लेकिन क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, इस तरह की बातों पर बहुत ज्यादा अवामी तवज्जो है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप इस बार ज्यादा जारिहत के साथ तेज रफ्तारी और बड़े पैमाने पर कुछ करना चाहते हैं। ट्रंप के इस इकदाम के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।